Good morning, dear students. We are doing our fifth lesson, and today we shall start from the 1971 election and restoration of Congress. The split in the Congress reduced Indira Gandhi's government to a minority, yet her government continued in office with the issue based support of a few other parties, including the Communist Party of India and DMK. During this period, the government made conscious attempts to project its socialist credentials. This was also a phase when Indira vigorously campaigned for implementing exiting land reform laws and undertook further land ceiling legislation. In other, in order to end her dependence on other political parties, strengthen her party position in the parliament, and seek a popular mandate for the programs, Indira Gandhi's government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970. This was another surprising and bold move. The fifth general election to Lok Sabha were held in February 1971. The 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस 1971 का जो चुनाव है और कांग्रेस की पुनर्स्थापना का काल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द स्पिल्ट इन द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी. कांग्रेस की टूट से, उसके बिखराव से इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई, मतलब माइनॉरिटी में आ गई. Yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties, including the Communist Party of India and DMK. लेकिन कुछ मुद्दे थे और उन मुद्दों के आधार पर समर्थन जो दिया था डीएमके ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस को समर्थन दे रखा. और समर्थन बल के सहारे, कुछ मुद्दों के आधार पर यह समर्थन था कांग्रेस को, दोनों पार्टीज़ का, डीएमके का और कम्युनिस्ट पार्टी का, और इसी के समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार है वो सत्ता में बनी रही. ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटेम्प्ट्स टू प्रोजेक्ट द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स. इस दौरान सरकार ने बड़े कॉन्शियसली, बड़े सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश कर दिया. दिस वॉज ऑल्सो ए फेज when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land ceiling legislation. इसी दौरान, इसी दौर में, इसी पीरियड में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा जितने भी कानून थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए, ग्राउंड पर क्रियान्वयन करने के लिए उनका तो ज़बरदस्त अभियान चलाया. In order to end the dependence on the political parties, strengthen her party position in the parliament, and seek a popular mandate for her programs, Indira Gandhi's government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970. उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने के लिए, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 में, जो दिसंबर में, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी. दिस वाज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव. द फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड इन फरवरी 1971. यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और इंदिरा गांधी जी के द्वारा उठाया गया बड़ा ही साहसिक कदम था
लोकसभा के लिए पाँचवें जो आम चुनाव हैं उसमें 1971 के फरवरी माह में वो चुनाव हुए। द कॉन्टेक्स्ट, मुकाबले के बारे में। The electoral contest appeared to be loaded against Congress R. After all, the new Congress was just one faction of an already weak party. Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress O. To make matter worse for Indira Gandhi, all the major non-communist, non-Congress opposition parties formed an electoral alliance known as the Grand Alliance. The SSP, PSP, Bharatiya Janasangh, Bharatiya Janasangh and Swamtra Party and Bharatiya Kranti Dal came together under the umbrella. The ruling party had an alliance with the CPI. तो इनका मुकाबला किन से था, कॉन्टेक्स्ट किन से था? The electoral context appeared to be loaded against Congress R. जो चुनाव का मुकाबला था कांग्रेस आर के विपरीत लग रहा था, कि सभी को विपरीत जान पड़ रहा था। आफ्टर ऑल, द न्यू कांग्रेस वॉज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। क्योंकि जो नई कांग्रेस थी वो एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा थी। और क्या था उसके अंदर? Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress O. सभी को ऐसा लग रहा था, विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली जो संगठन करने की ताकत है कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। To make matters worse for Indira Gandhi, all the major non-communist, non-Congress opposition parties formed the electoral alliance known as ग्रैंड अलायंस। अब कांग्रेस को यानी कि इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक ग्रैंड अलायंस बना और ये चुनावी गठबंधन था बहुत बड़ी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों का। इस गठबंधन ने एक ग्रैंड अलायंस नाम से बनाया गया, इसको ग्रैंड अलायंस कहते हैं। द एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल, ये सारे के सारे इकट्ठे आए। एक छाता के नीचे, एक छत के नीचे सभी इकट्ठे आए। द रूलिंग पार्टी हैड द अलायंस ऑफ विद द सीपीआई। लेकिन जो रूलिंग पार्टी थी उसका गठजोड़, उसका गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था। Yet the new Congress had something that its big opponents lacked. It had an issue, it has an agenda and a positive slogan. The Grand Alliance did not have a coherent political program. Indira Gandhi said that the Opposition Alliance had only one common program, and that is obviously Indira Hatao, remove Indira. In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan, Gribi Hatao, remove poverty. She had a good agenda there. She focused on the growth of the public sector, imposition of ceiling of rural land holding and urban poverty, removal of disparities in income and opportunity, and abolition of princely privileges. The Gribi Hatao Indira Gandhi tried to generate a spot base among the disadvantaged, especially among the landless, laborers, Dalits and Adivasis, minorities, women, and the unemployed youth. The slogan of Gribi Hatao and the programs that followed it were part Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political spot base. Yet the new Congress had something, लेकिन जो नई कांग्रेस है
उसके साथ एक बात थी, इट्स बिग ओपोनेंट लेग्ड इट हैड एन इशू, जो कि इसके जो बड़े बड़े अपोनेंट्स थे उनके पास ये बात नहीं थी, और ये था कि एक इशू था इंदिरा गांधी जी के पास, लेकिन उनके पास कोई इशू नहीं था। एक एजेंडा था इंदिरा गांधी के पास, लेकिन उनके पास कोई ऐसा खास प्रोग्राम नहीं था। एक पॉजिटिव स्लोगन था इंदिरा गांधी जी के पास, लेकिन उनके पास कोई ऐसा स्लोगन भी नहीं था। द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव ए कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम, उनके पास कोई भी ऐसा प्रोग्राम, ऐसा एजेंडा नहीं था जो सुसंगत कहे जा सके। इंदिरा गांधी said that the opposition alliance had only one common program, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने देश को कहा कि अपोजिशन के पास केवल एक ही कार्यक्रम है और वो है इंदिरा हटाओ। ऐसा घूम घूम कर पूरे देश में इंदिरा गांधी ने लोगों को बताया, तो एक अच्छा स्लोगन भी इंदिरा गांधी के पास हो गया। In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan. इसके साथ ही उसने एक ऐसा पॉजिटिव प्रोग्राम था उसके पास, एक सकारात्मक कार्यक्रम था उसके पास, जो उसने लोगों के सामने रखा। और गरीबी हटाओ, शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और साथ में ही गरीबी हटाओ जो लोगों के सामने रखा, बड़ा मशहूर ये नारा हुआ था गरीबी हटाओ। इसके जरिए उसने पार्टी को एक शक्ल प्रदान की थी, इंदिरा गांधी को एक नाम दिया था। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी कार्य किए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और जितने भी भूस्वामी हैं और शहरी संपदा हैं उसका भी उसने परिश्रमण किया, उसको भी रखा। Though गरीबी हटाओ Indira Gandhi tried to the landless laborers, Dalits and Adivasis, minorities, women and the unemployed youth, the slogan of गरीबी हटाओ and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base. तो इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की तो संवृद्धि की, साथ में ही उसने आय और अवसरों की असमानता थी जो वो समाप्त कर दी। एक प्रीवी पर्स होता था जिसके अंतर्गत जो 566 भारत में रियासतें थी उनमें वो अधिकार प्राप्त था, और वो उसी अधिकार के आधार पर एक विशेष अधिकार लिए हुए थे। तो राजा नवाब थे, जो राजकुमार थे, बड़े बड़े भूमिपति थे, उनके सारे के सारे वो प्रीवी पर से विशेष अधिकार है। और वो चुनाव में उसने उनकी समाप्ति पर एजेंडे में था उनके, और इस तरीके से चुनाव अभियान को उनके जोर मिला। तो इसके साथ ही गरीबी हटाओ का जो नारा था इंदिरा गांधी का, वो वंचित तबकों के लिए, खासकर जो कि भूमिहीन किसान हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, उन नौजवानों के बीच में जो बेरोज़गार हैं उनमें अपना समर्थन जुटाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक आधार बनाया, और गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी एक किस्म से, इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन जुटाना चाहती थी, उसकी बुनियाद थी, और वो उसमें सफल रही। द आउटकम एंड आफ्टर, जो परिणाम हुए और उसके बाद क्या हुआ। द रिजल्ट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन 1971 वर ड्रामेटिक एज was the decision to halt these elections. The Congress or CPI alliance won more seats and votes the Congress had ever won in the first 4 general elections. इससे पहले नहीं मिले थे इतने ज़्यादा वोट इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। The combined won 375 seats in Lok Sabha and secured 48.4% votes. Indira Gandhi Congress won 352 seats with about 44% of the popular votes of its own, जिसका केवल कांग्रेस का ही इन पर अधिकार था, 44% जो वोट्स थे। Contrast this with the performance of the Congress or the party with so many stalwarts could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi party and win mainly 16 seats. With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being
the real Congress and restored to it the dominant position in Indian politics. The grand alliance of the opposition proved a grand failure. Their combined tally of seats was less than 40. तो परिणाम क्या हुआ इसके बाद? जो 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ये भी इतने ही नाटकीय थे जितना कि चुनाव को करवाने का जो फैसला हुआ था। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट और जितनी सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले चार आम चुनाव हुए थे उनमें भी हासिल नहीं कर पाई थी। कांग्रेस के पास इतने वोट आज से पहले कभी नहीं आए थे जितना अब की बार आए। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और जो कुल 48.4% वोट हासिल हुए। अकेले इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी कांग्रेस आर उसको 352 सीटें और 44% जो मत थे जनता के अकेले इसको मिले। अब जरा इन तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें जो दूसरी पार्टी से निकल के गई थी, जो रियल कांग्रेस थी। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उनके 1/4 वोट ही इनकी झोली में आए। इस पार्टी को केवल महज जो 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली जो कांग्रेस थी उसने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उस भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया कांग्रेस पार्टी को, जो नई कांग्रेस पार्टी थी इंदिरा गांधी के द्वारा स्थापित की गई थी। विपक्षी जो ग्रैंड अलायंस थे वो सारे धराशायी हो गया और इस महाजोट को 40 से भी कम सीटें लोकसभा में प्राप्त हुई थी। यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, वीक कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है दिखाई नहीं देता, बड़ा आंखें फ्लैश से ख़राब हो जाती हैं बेटा, काफ़ी चमक बनती है आँखों में और आप पढ़ते नहीं हैं। बड़े दुख की बात होती है हमारे लिए। द ग्रैंड फिनिश इज़ हाउ ए कार्टूनिस्ट interpreted the outcome of the 1971 elections. Players on the ground are then lending opposition figures. द ग्रैंड फिनिश नामक का ये कार्टून है। कार्टून में 1971 के जो आम चुनाव हैं उनके परिणामों पर दिखाया गया, टिप्पणी की गई है कि जो पराजित खिलाड़ियों के रूप में उस समय के प्रमुख विपक्षी नेताओं को दिखाया गया। आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वॉज कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड एंड द थर्ड। ये जो पब्लिक है यहाँ पे खड़ी, ये जो नेता लोग हैं ये खड़े हुए ये बात कर रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा विश्वास नहीं किया था कि मैं फर्स्ट सेकंड आने की सोच रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने सभी को इस स्पोर्ट्स मैदान में, राजनीतिक स्पोर्ट्स में वो पटकनी दे दी। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट है वो अगला पॉइंट फिर करेंगे। तो यहाँ पे सून आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शंस ए मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश. As you have read in the chapter 4, the 1971 elections were followed by the crisis in the East Pakistan and the Indo-Pak War, leading to the establishment of Bangladesh. These events added to the popularity of Indira Gandhi. Even the opposition leaders admired her statesmanship. Her party swept through all the state assembly elections held in 1972. She was seen not only as the protector of the poor and the underprivileged, but also a strong nationalist leader. The opposition to her, either within the party or the outside of it, simply did not matter. 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश है, उसमें एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट खड़ा हुआ। फोर्थ लेसन में हमने पढ़ा है कि 1971 के चुनाव के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ था और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया था। इसके रिजल्ट में इसके परिणाम स्वरूप जो बांग्लादेश बना था, इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में
काफ़ी इजाफा हुआ था, 4 चांद लग गए थे। विपक्ष के नेता तक थे जो उन्होंने भी इंदिरा गांधी के कौशल की प्रशंसा की थी। आज की तरह नहीं जिसमें एक जो अपोजिट पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी का पता नहीं कैसे मजाक उड़ाते हैं, कई बार जनता को भी जो पसंद नहीं होते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस समय विपक्ष ने भी काफ़ी प्रशंसा की थी किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपना कौशल दिखाया है। 1972 के जो राज्य विधानसभा के चुनाव थे उनमें पार्टी को काफ़ी सफलता मिली और उनके गरीबों और वंचित जो थे उनके रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनको देखा गया। पार्टी के अंदर और उसके बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब सभी उनकी प्रेज कर रहे थे इंदिरा गांधी की। काफ़ी अच्छे नेता के रूप में वो उभर कर सामने आई। विद 2 सक्सेसिव इलेक्शंस विक्ट्रीज, one at the center and other at the state level, the dominance of the Congress was restored. The Congress was now in power in the almost of the states. It was also popular across different social sections. Within a span of 4 years, Indira Gandhi had warded off the challenge to her leadership and to dominant position of the Congress party. तो कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य सत्र के चुनाव में भी जीती है। इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता प्राप्त कर चुकी थी और समाज के जो विभिन्न वर्ग थे ये लोकप्रिय हो गई थी सभी वर्गों में। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने जितनी भी चुनौतियां थीं उनको धूल चटा दी और अब वो एक मजबूत और सशक्त नेता के रूप में उभर कर सामने आई थी। द न्यू मैनर ऑफ चूजिंग सीएम्स बाय इंदिरा गांधी इंस्पायर्ड दिस कार्टून। तो ये सीएम बनाए इंदिरा गांधी ने कि किस प्रकार से उन्होंने सीएम है अपने तरीके से बनाए थे। ठीक है, ये कार्टून में दिखा रखा है। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी क्या कर रही हैं यहाँ पे आप देखिए। ये इनके जो डमी सी रखी हुई हैं उनमें। ठीक है, बड़े अच्छे कार्टून है। आप भी क्रिएटिव है, बनाया करो कुछ ना कुछ बेटा। कार्टून मेकिंग आपको बोलते हैं, सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाया है स्कूल लेवल पे आपको, आप बस उसको करो। नेक्स्ट है हमारा रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन मतलब कांग्रेस पार्टी को कैसे हमने रिस्टोर किया, कैसे इसकी स्थापना हुई, कांग्रेस प्रणाली दोबारा से फिर आई, इसके बारे में हम कल को पढ़ेंगे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट एज ऑफ नॉलेज।